नमस्कार सभी को। आज हमारे डे 3 सेशन के अंदर आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हमारे साथ श्रीमती जी अनसुया मैडम, डिप्टी कमिश्नर नवोदया विद्यालय समिति रीजनल ऑफिस हैदराबाद से जुड़ चुके हैं। हम तुरंत ही उनके साथ जुड़ के उनका जो मैसेज है, ब्लेसिंग्स है, वो सुनेंगे। सो स्टे ट्यून। Invited guests, officials from Navodaya Vidyalaya Samiti, dear physical education teachers, and my dear students. Fit India movement is a nationwide movement to encourage people to remain healthy and fit by including physical activities and sports in their daily lives. 2 to 3 decades before, physical activities were part and parcel of everyone's daily routine. But due to advancement of technology and its affordability, physical activities have reduced to a greatest extent. Walking or cycling for about 5 to 6 kilometers every day was in practice with most of the people. But nowadays, unless otherwise we plan and implement, it is not happening. All sports activities, more particularly the area-specific sports and martial arts practice, also yoga practice, which is a gift of India to the whole world, play a vital role in maintaining physical fitness. All Navodayans are fortunate to be in the sprawling 30 acres of pollution-free area with all physical and sports activities conducted meticulously in an effective manner. Due to this regular practice, Navodayans are physically fit even after leaving the campus. I do recall now that a mother of a lateral entry class 11 student told me that she is admitting her daughter in Navodaya for availing good education, but more particularly to develop fitness, as her daughter was little overweight. Within a span of 2 years, the girl turned out to be smart and fit with the regular physical activities that is being carried out in every JLU. So we Navodayans should feel proud about our system, which is providing overall development to the students. Mental alertness is a byproduct of physical fitness. Even during this COVID pandemic period, which is a new normal, our physical education teachers are doing a good job by handling online classes on health education and motivating and monitoring their regular physical activities and practice undertaken by the students in the area of sport. I appeal to all Navodayans to be a responsible citizen and to play a vital role in making our young India with more youth population to be a fit India also. Let us now take the fitness pledge. I promise to myself that I will devote
time for physical activity and sports every day, and I will encourage my family members and neighbors to be physically fit and make India a fit nation. Jai Hind. Thank you, madam. Thank you for your kind and motivational words. हमारे साथ हमारे आज के एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, श्री जिग्नेश मौर्य सर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, जवाहर नवोदय विद्यालय, गांधीनगर, गुजरात, पुणे रीजन, जो हमें ब्रेन गेम, हमारी मेंटल एबिलिटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर हमें गाइड करेंगे चेस के माध्यम से। सो हम स्वागत करते हैं सर का। नमस्ते, आप सभी को फिट इंडिया वीक सेलिब्रेशन में आप सभी का स्वागत है। फिट इंडिया वीक सेलिब्रेशन वो एक हमारी फिट इंडिया मूवमेंट का पार्ट है, और फिट इंडिया मूवमेंट जो हमारी है वो फिट इंडिया के सेलिब्रेशन के अंतर्गत चाहती है कि हम फिट रहे, स्वस्थ रहे, और इस कोविड-19 की कंडीशन में भी हम कैसे घर पर भी रह के अपने आप को स्वस्थ रखें और हमारे आसपास के वातावरण को भी कैसे स्वस्थ रखें। तो इस फिट इंडिया वीक सेलिब्रेशन के अंतर्गत जो ब्रेन एक्टिविटी है वो बहुत सारी ब्रेन एक्टिविटी है, पर उसमें हम आज अलग से ब्रेन गेम्स जो चेस है वो सीखना चाहेंगे। और जब भी कुछ सीखने की बात आती है तब हमारे मन में से यही क्वेश्चन आता है, क्यों हम चेस क्यों सीखना चाहते हैं। तो हम चेस इसीलिए सीखना चाहते हैं कि हमारे अंदर जो बहुत सारी शक्ति है, हमारा जो आईक्यू पावर है, हमारा जो कंसंट्रेशन है, हमारा डिसीजन पावर है, और जो स्टडी करते हैं उसमें हम कैसे हमारा लेवल है जो अप ले जाए। तो उसमें हमें चेस बहुत हेल्प करता है और हमें इसीलिए चेस को सीखना जरूरी है। इसके साथ साथ बहुत सारी आउटडोर एक्टिविटी है, गेम्स है जो हम खेलते हैं जिसमें हमें फिजिकल फिटनेस की आवश्यकता रहती है, पर वो फिजिकल फिटनेस एक समय ऐसा आता है कि जब वो फिटनेस धीरे 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 खत्म होता जाता है। पर चेस ऐसी गेम है कि जो 4 साल से लेके 70-80 साल तक हम इसको खेल सकते हैं और हमें इसको खेलना चाहिए। तो जब चेस खेलने की बात जब सामने आती है तब हमारे मन में यही आता है कि हमारे इंडिया के सबसे बेस्ट कौन है। तो हमारे इंडिया के सबसे बेस्ट विश्वनाथ आनंद जो है, उन्होंने फीडे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है उसमें 2000 में, 2007 में, 2008 में और 2010 और 2012 में हमें वर्ल्ड चैंपियनशिप के साथ हमारा गौरव बढ़ाया है, इंडिया का गौरव बढ़ाया है। और वो हमेशा इसीलिए चेस का नाम लेते ही हमें याद आते हैं। विश्वनाथ आनंद तब तक लगातार 5 बार चैंपियन रहे। जो उनके साथ अभी आप देख रहे हैं वो मैग्नस कार्लसन है। जब तक मैग्नस कार्लसन नहीं आए थे तब तक कंटिन्यू विश्वनाथ आनंद चैंपियन रहे हैं। इंटरनेशनल जो चेस फेडरेशन है तो उसमें एक रेटिंग होता है, और रेटिंग के क्रम में अभी के टॉप प्लेयर में मैग्नस कार्लसन है जो अभी सबसे टॉप पर है। और उसी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के अंदर जो रेटिंग है उस रेटिंग के क्रम में आपके सामने जो आप देख रहे हैं उसमें विश्वनाथ आनंद जो सर है हमारे, वो आज भी 2751 रेटिंग के साथ फर्स्ट नंबर पर है। हमारे हरिकृष्णन सर है, गांगुली सर है, ऐसे हमारी सीक्वेंस बनी हुई है इंडिया की जो टॉप प्लेयर की। उनके सामने जो टाइटल है उनका ग्रैंड मास्टर
तो ये हमारे इंडिया के ग्रैंड मास्टर है। पर ये सभी बात हो गई इंटरनेशनल कि हम यहाँ तक खेल सकते हैं और खेलना चाहेंगे भी। पर आज हम 30 मिनट में क्या सीखेंगे? तो 30 मिनट में आज हम चेस के रूल्स, चेस की कैसे प्रैक्टिस करेंगे, और जब कोविड-19 की कंडीशन है तो कौन से प्लेटफॉर्म अवेलेबल है और उसमें कौन से प्लेटफॉर्म पर हम अभी खेल सकते हैं। इसका बेनिफिट यही होगा कि अभी आप स्कूल से घर पर है, अपने क्लासमेट से नहीं खेल पा रहे हैं। जब आप थे यहाँ स्कूल में तब ग्राउंड में बहुत सारे गेम उनके साथ खेलते थे और उसको लंबा समय हो गया काफ़ी। तो इंटर क्लास चेस टूर्नामेंट भी हम इसमें 30 मिनट के अंदर हम सीख पाएंगे कि हम अपने साथियों के साथ कैसे घर पर रहते हुए इंटर क्लास खेल सकते हैं, इंटर हाउस टूर्नामेंट खेल सकते हैं। तो हम यही चीज़ है 5 जो जल्दी से हम सीखना चाहेंगे। और उस क्रम में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम आते हैं चेस। तो चेस मतलब आपको बेसिक से लेके 6-7 क्लास भी है इसमें हमारे साथ शामिल है, तो उनको भी एक अच्छा मौका है कि कैसे चेस के जो मोहरे रहते हैं, पीसीस रहते हैं, तो उसमें पीसीस में केवल 6 पीस है, जिसके बारे में हमें सीखने से पूरा चेस मतलब आ गया। तो सबसे पहले आपके सामने है रूक। रूक का मतलब हाथी। नाइट, नाइट का मतलब घोड़ा। बिशप मतलब ऊंट। पॉन मतलब सिपाही। किंग मतलब राजा। और क्वीन मतलब रानी। तो ये 6 मोहरे हैं हमारे पास, 6 पीस है, जिसके बारे में हमने अगर सीख लिया तो हमारा चेस मतलब हमें कंप्लीट हमारा सीखना हो गया। तो चेस में यही 6 पीस के बारे में सीखते सीखते हम यही सबसे पहला स्टेप लेंगे कि चेस का जो बोर्ड है तो उस बोर्ड को कैसे सेट करें। तो बोर्ड को सबसे पहले सेट करने में जो व्हाइट बॉक्स है वो राइट साइड हमारे तरफ आना चाहिए। इसको हम कैसे भी 90 एंगल पर भी घुमाएंगे तो ब्लैक आ जाएगा, तो ब्लैक नहीं आना चाहिए। इसको हम कैसे भी रखें तो हमारा जो व्हाइट कॉर्नर है वो राइट साइड आना चाहिए। तो उसमें पीस कैसे सेट करें? तो सबसे पहले पीस हम रूक को सेट करेंगे। तो रूक हमारे पास 2 रहते हैं, दोनों तरफ एक एक रूक हमने सेट कर दिया। और रूक के पास में बिल्कुल नाइट को सेट करेंगे। नाइट मतलब घोड़ा, एक घोड़ा इस तरफ और एक घोड़ा इस तरफ सेट कर लेंगे। उसके पास बिशप आ जाएगा। बिशप मतलब ऊंट, एक ऊंट, 2 ऊंट रहते हैं, एक इधर आ जाएगा और एक इस तरफ आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 8 सिपाही रहते हैं, पॉन रहते हैं, उनको हम यहाँ पर सेट कर देंगे। उसके बाद अब टर्न आता है कि 2 ही पीस बाकी रहे, उसमें से एक किंग और दूसरा क्वीन। किंग मतलब राजा। राजा को कैसे सेट करें? तो राजा को सेट करने के लिए यही रूल्स है कि हम अभी व्हाइट पीस सेट कर रहे हैं, तो व्हाइट पीस का जो किंग है, राजा है, वो ब्लैक बॉक्स में आएगा। और उसी तरह ब्लैक पीस सेट कर रहे हैं तो ब्लैक पीस का जो किंग है, राजा है, वो व्हाइट बॉक्स में आएगा। तो यहाँ पर हम राजा को सेट करते हुए, यहाँ व्हाइट पीस है इसीलिए ब्लैक बॉक्स में आ जाएगा। अभी हमारे पास एक ही पीस है, वो है क्वीन मतलब रानी, उसको भी हमने सेट कर दिया। ये हो गए सभी व्हाइट पीस का सेट कर दिया हमने। उसी तरह ब्लैक पीस में सबसे पहले हमने रुक को सेट कर दिया, एक रुक इस तरफ सेट कर दिया। नाइट को सेट कर दिया, एक नाइट इस तरफ आ गया। उसके पास में सेम बिशप आ जाएगा, दोनों तरफ बिशप ऊंट आ गया। उसके बाद पॉन को हम सेट कर देंगे, 8 पॉन को। फिर यही रूल्स फिर से हमारा है कि हमें किंग को सेट करना है। तो किंग को सेट करने के लिए हम जो ब्लैक पीस है, इसीलिए ब्लैक पीस का जो किंग है वो व्हाइट बॉक्स में आ जाएगा। और एक क्वीन है हमारे पास, रानी है, वो यहाँ पर
सेट हो जाएगी। तो ये हमारा बोर्ड सेटअप हो गया कि बोर्ड को हम कैसे सेट करना है। उसके बाद हमें 6 पीस के बारे में जो चर्चा की, उसमें सबसे पहले हाथी। हाथी मतलब कैसे चलेगा, कैसे मूव करेगा। हाथी मतलब रुक, तो रुक प्लस में मूव करेगा। प्लस में कैसे मूव करेगा, हम देख सकते हैं यहाँ पर कि प्लस में रुक हम चाहे तो लेफ्ट साइड चला लिया। हमने अगर सोचा कि उधर नहीं मूव करना है, राइट साइड करना है, हमने राइट साइड मूव कर लिया। अगर हम चाहते हैं कि ऊपर मूव करना चाहते हैं तो ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे करना चाहते हैं तो नीचे भी मूव कर सकते हैं। मतलब प्लस की साइन में हम रुक को मूव करवा सकते हैं। ये हमारा हो गया एक पीस को हम कैसे मूव करवा सकते हैं, रुक को, हाथी को, ये हो गया। उसके बाद आते हैं हम बिशप। बिशप मतलब ऊंट। ऊंट को हम कैसे मूव करवाएंगे, तो ऊंट को हम क्रॉस में मूव करवाएंगे। जैसे रुक को हम प्लस में करवा रहे थे, वैसे ऊंट को हम क्रॉस में मूव करवाएंगे। और क्रॉस में कैसे, तो क्रॉस में हम चाहेंगे कि ऊंट कितने भी स्टेप चल सकता है। तो चाह के नीचे की तरफ, हमने चाहा कि ऊपर चला सकते हैं तो ऊपर भी कर सकते हैं। हमने सोचा इधर चलाना है तो इधर भी चला सकते हैं, और इधर चाहा तो इधर भी हम उसको मूव करवा सकते हैं। तो बिशप हो गया। अब आ गया किंग। किंग को कैसे मूव करवा सकते हैं, तो रूक के लिए और बिशप के लिए अनलिमिटेड स्टेप थे, कितने भी स्टेप चल सकते हैं। यहाँ पर किंग जो एक ही स्टेप चल सकता है, एक स्टेप से ज्यादा नहीं चलता, केवल एक ही सिचुएशन में उनको चांस मिलता है, उनका नाम है कैसलिंग। और कैसलिंग के समय केवल राजा 2 स्टेप चल सकता है, बाकी पूरी गेम में राजा को एक ही स्टेप लेना होता है। तो एक स्टेप कैसे लेंगे, तो एक स्टेप रुक प्लस में चल रहा था, प्लस में भी चल सकते हैं राजा। बिशप की तरह क्रॉस, क्रॉस में भी चल सकते हैं। अगर प्लस और क्रॉस दोनों में का कॉम्बिनेशन है, उसमें हम मूव करवा सकते हैं किंग को, पर एक ही स्टेप ले सकते हैं। तो हम अभी क्रॉस में मूव करवा रहे चाहे तो यहाँ पर एक स्टेप, अगर चाहे तो वहां नहीं, ऊपर की तरफ एक स्टेप ले लिया, या फिर इधर एक स्टेप ले लिया, या फिर नीचे की तरफ एक स्टेप लिया, ये हो गया क्रॉस्ड। अब इसी सिचुएशन में हमने चाह प्लस की सिचुएशन क्रिएट करते हैं, तो इधर भी मूव कर सकते हैं, इधर भी मूव कर सकते हैं, ऊपर भी मूव करवा सकते हैं एक स्टेप के रूप में, नीचे भी करवा सकते हैं। तो अभी 3 पीस हम सीख गए, और 3 पीस बस हमारे पास बचे हुए हैं। क्वीन। क्वीन मतलब रानी। तो रानी को कैसे मूव करवा सकते हैं, रानी को मूव करवाने के लिए सेम वही, राजा प्लस में और क्रॉस में चल सकते थे, पर उनको एक ही स्टेप का रूल्स है कि वो एक स्टेप से ज्यादा नहीं चल सकते। इनको अनलिमिटेड स्टेप है, प्लस और क्रॉस में दोनों में मूव कर सकती है क्वीन, पर कितने भी स्टेप, फॉरवर्ड भी जा सकती है, पीछे भी आ सकती है। ये अभी हम क्रॉस में चला रहे हैं, तो ये क्रॉस में मूव हो सकती है, प्लस में भी मूव हो सकती है, बिल्कुल हाथी की तरह, रुक की तरह। तो ये हो गया हमारा क्वीन, कि क्वीन कैसे मूव करती है। अब हो गया घोड़ा। घोड़ा जो चेस की लैंग्वेज में हम उनको नाइट कहते हैं। तो नाइट कैसे मूव करेगा, तो आपके सामने जो कंडीशन दिख रही है आपको, उस स्थिति में 8 जगह पर नाइट मतलब घोड़ा चल सकता है, पर जहां पर भी वो मूव करेगा वहां पर उनको 2.5 स्टेप लेते हुए एल शेप बनेगा, उसी में वो मूव कर सकता है। 2.5 स्टेप मतलब 2 स्टेप फॉरवर्ड और 1 स्टेप पास में। कैसे 8 जगह चलता है यहां पर हम देखते हैं। फर्स्ट स्टेप जो कंडीशन में थे वहां पर यहां पर आते हुए एल शेप बन रहा है, आपको दिख रहा है एल, ये हो गया वही एक जगह। हमने सोचा उस तरफ नहीं, यहां पर चलाना है, तो यहां पर भी एल हो रहा है इस तरफ ऐसे, तो यहां पर भी 2.5 स्टेप हो गए। हमने सोचा यहां नहीं, यहां चलाना है, यहां पर भी मूव कर सकते हैं, यहां पर भी कर सकते हैं, यहां पर भी कर सकते हैं, यहां पर भी कर सकते हैं, इस तरफ भी चला सकते हैं,
और इस तरफ भी चला सकते हैं। टाई स्टेप मूव करवा सकते हैं नाइट को। बस रूल्स यही है कि वाइट का जहां पीस है उस जगह पर मूव नहीं करते हुए कहीं पर भी वो मूव कर सकते हैं। अब लास्ट छठा पीस हमारा लास्ट पॉन मतलब सिपाही कैसे चलेगा। तो सिपाही दोनों के पास 8-8 है। जो उनकी बेसिक मतलब पोजीशन है वहां पर उनको हर एक सिपाही को एक मौका मिलता है। वो चाहे तो एक स्टेप चलता है और चाहे तो 2 स्टेप भी मूव कर सकता है। पर बेसिक पोजीशन को एक बार छोड़ने के बाद फिर उनको एक एक स्टेप ही मूव करना है और सिपाही कभी बैक नहीं आ सकता। उनको फॉरवर्ड आगे ही जाना है। बाकी सभी पीस कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। केवल एक सिपाही एकमात्र ऐसा है जिनको फॉरवर्ड ही मूव करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम व्हाइट को मूव कर रहे हैं। जब व्हाइट को मूव कर रहे हैं तो हमें लगता है कि व्हाइट ही क्यों, ब्लैक क्यों नहीं। तो चेस में जब भी कोई टूर्नामेंट हो, जब भी कोई मैच चालू हो, तो व्हाइट टू फर्स्ट प्ले मतलब व्हाइट को ही फर्स्ट प्ले करना पड़ता है। और वो जब आपका ड्रॉ होता है उसी समय डिसाइड हो जाता है कि किसके ब्लैक रहेंगे किसके व्हाइट रहेंगे और अल्टरनेट वो हमें मिलते रहते हैं। तो यहाँ पर जो व्हाइट ने अभी 2 स्टेप लिए, वो चाहते तो एक स्टेप भी ले सकता था पर यहाँ पर उन्होंने 2 स्टेप मूव किए हैं। उसी तरह ब्लैक ने भी मूव कर दिया 2 स्टेप। अभी हम चाहते हैं कि ये दोनों सामने सामने आ गए हैं। तो सामने आ गए तो कोई भी एक दूसरे को मार भी नहीं सकता और वहां पर उनको बस केवल खड़ा ही रहना है, आगे नहीं जा सकते। आगे वो तभी जा सकते हैं जब उनको क्रॉस में कोई और पॉन आ जाए। अभी इसी कंडीशन में व्हाइट ने चाहा कि और हम एक स्टेप ले तो उन्होंने एक स्टेप लिया पॉन का। ब्लैक ने यही सोचा कि मैं 2 स्टेप मुझे मूव करनी है तो उन्होंने 2 स्टेप सोचा। अभी कंडीशन ये हो गई है कि ब्लैक और व्हाइट पॉन क्रॉस में आ गए हैं। तो इस कंडीशन में व्हाइट है तो व्हाइट उनको आगे भी बढ़ सकता है और उनको मार सकता है। मतलब पॉन की दोनों तरफ क्रॉस में अगर कोई भी पीस आता है तो पॉन उनको मार सकता है। सिवाय के राजा, राजा को जब भी मारना होगा तब भी उनको केवल चेक बोलना पड़ता है। चेक के अलावा नहीं, मतलब राजा को मार नहीं सकते, उनको हम किला बंदी कर सकते हैं, चेकमेट कर सकते हैं। ब्लैक ने फिर एक स्टेप मूव किया, उन्होंने 2 नहीं किया। यहां पर एक स्टेप मूव इसलिए करवा रहे हैं ताकि अगर बेसिक पोजीशन है उसमें से चाहते हैं कि एक चलाना तो एक चला सकते हैं, 2 चलाना तो 2 चला सकते हैं, पर एक बार जब एक स्टेप चला लिया उसके बाद 2 स्टेप नहीं चला सकते। फिर से व्हाइट ने एक स्टेप मूव लिया। अभी फिर से यही कंडीशन हो गई कि क्रॉस में आ गए ब्लैक एंड व्हाइट। तो यहाँ पर ब्लैक है जो उनको व्हाइट पॉन को मारता है और व्हाइट पॉन को हम कैप्चर कर सकते हैं। जब ये पीस के बारे में हमने सीख लिया तो हमें ये सोचा कि भाई राजा को तो मार नहीं सकते, तो राजा को नहीं मार सकते तो गेम कैसे खत्म होगी। तो आइए हम देखते हैं गेम कैसे खत्म होगी। गेम जब खत्म होती है तब हम कहते हैं चेकमेट। और जब भी राजा अगर हमें कैप्चर करना हो, मारना होता या मर रहा है, तब हमें उनको कंपल्सरी चेक ऐसा जरूर बोलना पड़ता है। तो यहां पर व्हाइट की मूव है, व्हाइट ने 2 स्टेप चलाए। ब्लैक की मूव है, ब्लैक ने भी 2 स्टेप चलाए। व्हाइट की मूव है, व्हाइट ने अपना बिशप ऊंट को आगे ले आया। ब्लैक ने पॉन एक आगे किया। व्हाइट ने अपनी एक पोजीशन क्रिएट करते हुए वजीर को, रानी को, क्वीन को लाया आगे। यहां पर बिशप पर अटैक किया गया पॉन से। यहां पर बिशप को हटाना बहुत जरूरी है, पॉन उसको मार सकता है। पर यहां बिशप को नहीं बचाते हुए यहां से राजा को ये पॉन मारते हुए हम चेक दे रहे हैं। और इस कंडीशन में राजा किंग हमारे व्हाइट पीस को नहीं मार सकता क्योंकि उनको बिशप का सपोर्ट है और बाकी एक भी जगह किंग है वो मूव नहीं कर सकता। मतलब इस कंडीशन को हम चेकमेट कहेंगे। यहां पर गेम
समाप्त होती है हमारी। तो हमने सीख लिया कि कैसे पीस को चलाना है, कैसे मेट कर सकते हैं। उसको आगे चलते हुए कैसे प्रैक्टिस करें इसकी, तो इसकी प्रैक्टिस के क्रम में हम जाएंगे leechess.org है, जो आपको लिंक दे रखी है। तो वहां से ये सब पीस है आपके सामने, इस साइट पर आ गए। कैसे इसकी जब सीख रहे हैं तब कैसे प्रैक्टिस की आवश्यकता है, तो इस साइट पर जाके जो आपके सामने रूक है, बिशप है, क्वीन है, किंग है, नाइट है, पॉन है, इनकी कैसे प्रैक्टिस करें, सीखना है। बार बार हमें सीखना है, गलती हो रही है। तो यहाँ पर रूक को हम देख रहे हैं, रूक पर हमने क्लिक किया, रुक को कैसे चलना है। तो यहाँ पर एक कंडीशन हमें दी है कि आपको स्टार जो दिख रहा है उन पे प्लस की साइन में हमें चलते हुए उनको कैप्चर करना है। तो यहाँ पर मूव कर दिया, तो मूव करते ही यहाँ पर हमें जो दिए थे 1 2 3 4 5 6 उसमें दिया गया 3 स्टार दिए गए कि अच्छे से मूव हो चुकी है। अभी 2 स्टार दिए हैं, तो 2 स्टार को कवर करना है, ये हो गया। अभी प्लस की साइन दिख रही है, बन रही है उसमें। अब दूसरा भी स्टार हमने कैप्चर कर लिया। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट में भी 3 स्टार, सेकंड में भी 3 स्टार, अभी थर्ड हमें मूव करनी है। तो हम चल सकते हैं, यहाँ पर जैसे हमने क्लिक किया तो हम ऊपर भी जा सकते हैं, पर उसमें हमने स्टार को कवर नहीं किया, तो हमारी मूव व्यर्थ होगी। हमें ऐसी मूव करनी चाहिए कि जिससे हमें कम मूव में हम ज़्यादा से ज़्यादा सामने वाले के पीस को कैप्चर कर सके। तो यहाँ पर 2 स्टेप हो गए। ये तीसरे स्टेप में मैंने एक स्टार को कवर किया, फिर ये दूसरे स्टार को कवर किया, फिर यहाँ पर आया और फिर इनको प्रैक्टिस करते हुए यहाँ कैप्चर किया। तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है कि 3 स्टार नहीं देते हुए 1 स्टार मिला, क्योंकि जो हमारी जितनी मूव में कम से कम मूव में उन स्टार को कवर करना था वो हम नहीं कर पाए। तो यही आपके साथ, ये तो एक एग्जाम्पल हो गया रूक का। बिशप, ऐसे ही बिशप कैसे मूव करवा सकते हैं, तो बिशप का भी आपका एग्जाम्पल यहाँ सामने है कि ये बिशप क्रॉस वाला है, उनको भी हम मूव करवा सकते हैं। उसके बाद क्वीन पर आते हैं, तो क्वीन की प्रैक्टिस के लिए हमें क्या चाहिए, दोनों स्टार को कवर करना है। तो दोनों स्टार को कवर करते हुए प्लस और क्रॉस में कितने भी स्टेप हम ले सकते हैं, तो यहाँ पर किया। जब भी यहाँ क्लिक होता है तो ये जो आपको डॉट दिखा दे रहे वो मतलब वो दिखा रहे हैं कि हम कितनी जगह पर यहाँ से क्वीन को मूव करवा सकते हैं। तो अभी हमें स्टार को कवर करना है, इसीलिए हम स्टार पर गए, ये हो गया। तो ये मतलब सब प्रैक्टिस है हमारी। ऐसे ही हमारे पास किंग है, किंग के लिए हम मूव कर सकते हैं। यहाँ पर एक एक स्टेप दिया हुआ है जो आप देख सकते हैं एरो के थ्रू, कि हम पहला एक स्टेप यहाँ लेंगे, फिर प्लस और क्रॉस को ध्यान में रखते हुए फिर एक स्टेप गए हम, और फिर इनको स्टार को कवर किया। तो ये प्रैक्टिस है। उसके साथ साथ नाइट की भी, जो एल शेप में हमें चलाना है, तो उनको दोनों स्टार से कैसे कवर करें। तो एल शेप में फर्स्ट ए कवर हो गया, सेकंड एल स्टेप में ऐसे कवर हो गया, ऐसे ही सभी स्टार को यहाँ कवर करना है हमें। तो कैसे सभी स्टार को कवर करना है एल शेप में, आप देख सकते हैं, आपके सामने है। ये कवर कर लिए सभी स्टार को। लास्ट में पोन की प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो पोन के लिए हमें ए स्टार कवर करना है। यहाँ पर पोन इसीलिए है कि पोन जब लास्ट लाइन में पहुंच जाएगा, रिटर्न तो आ नहीं सकता इस कंडीशन में, तो पोन जब लास्ट लाइन में पहुंच जाता है तब हम उनको 4 जो मेन पीस है उसमें से कुछ भी बना सकते हैं। रूक बना सकते हैं, बिशप बना सकते हैं, क्वीन बना सकते हैं, नाइट बना सकते हैं। पर ज्यादातर कंडीशन में ध्यान में रखते हुए अच्छे खिलाड़ी उनको इन 4 ऑप्शन में से, 4 ऑप्शन है उसमें से क्वीन पर प्रेफरेंस देता है और क्वीन बनाता है, उसके बाद इसको कवर कर लिया। तो ये हो गई हमारी प्रैक्टिस कि हम इसको कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अंत में लास्ट में, हम पहुंच रहे हैं
कि कैसे हम अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ कैसे खेल पाएंगे इनको, और घर बैठे हम इंटर हाउस, इंटर क्लास टूर्नामेंट का आयोजन कैसे करें। तो उसको देख लेते हैं। आप नोट करिए साथ में, और सभी हमारे दोस्त है, शिक्षक साथी है, उनसे उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट यही है कि सर, हम चाहेंगे तो बिल्कुल अभी भी हम करवा सकते हैं इंटर हाउस, इंटर क्लास। तो चेस पीस के बारे में मैं सीख चुके, इसमें बहुत और फंडामेंटल भी है, जैसे कैसे कैप्चर करना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है, बहुत सारा इसमें है। बोर्ड को कैसे सेट करना है, कैसलिंग की भी कैसे हम कर सकते हैं, एंड पास जो एक रूल्स अभी मैंने आपको नहीं बताया यहाँ पर, एंड पास की भी इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इंटर जो हम क्लास या हाउस करना चाहते हैं, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। तो उस प्लेटफॉर्म में से हम इस प्लेटफॉर्म का क्यों यूज कर रहे हैं, ली चेस का। तो ली चेस का इसीलिए हम यूज करते हैं कि जब भी हम कभी भी इसमें लॉगिन हो गए, तो कम से कम 40,000 से 80,000 तक, 90,000 तक प्लेयर इसमें ऑनलाइन किसी भी समय अवेलेबल रहते हैं। इनके साथ साथ हमारे लेवल का ही प्लेयर इसमें आएगा। जो पॉइंट है, पॉइंट टेबल है, हमने देखा फिडे का भी, तो फिडे में ऐसा नहीं है कि किसी भी, हर एक स्टेट में आज फिडे की जो रैंकिंग है टॉप, उसमें टॉप पर मैग्नस कार्लसन है। तो कहीं ना कहीं उसी रैंकिंग में इंडिया के जो हमारे प्लेयर है, इंडिया के स्टेट के, वो भी उस फिडे रैंकिंग के होल्डर भी है, वो कहीं ना कहीं ऐसे है। तो मतलब जो मैच होती है, तो मैच यहाँ पर आपके लेवल का ही प्लेयर आपके सामने आएगा, क्योंकि इतने सारे प्लेयर में से टॉप और बॉटम ऐसे मैच नहीं होती, इसीलिए प्लेटफॉर्म का यूज किया गया है। और साथ साथ में इस प्लेटफॉर्म में मतलब किसी भी प्रकार का हमें खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ली चेस को डाउनलोड करके हमारे मोबाइल में बहुत सारी मोबाइल में हम गेम खेलते हैं, तो उसमें प्ले स्टोर में जाके ली चेस को डाउनलोड करते हुए सबसे पहले आपको दिख रहा है, 3 लाइन दिख रही है ली चेस के पास में ही, यहाँ पर आपको, तो वहाँ पर क्लिक करने से आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी साइन इन। तो उसमें हमें साइन इन पर क्लिक करना है। यहाँ पर सीधा साइन इन में हमें यूज़र आईडी और पासवर्ड हमारे पास नहीं है, इसीलिए हम पहले रजिस्टर करेंगे। तो ये रजिस्टर है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, और रजिस्टर के बाद आपके सामने ऑप्शन आएंगे, आपका यूज़र नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड। तो यूज़र नेम में आप अपना नाम लिख सकते हैं, अगर वो नाम अवेलेबल नहीं है तो अपने नाम के मतलब पीछे आप कोई भी डिजिट लिख सकते हैं। पर यहाँ पर जो मेल आईडी दिया गया है, वो मेल आईडी जो आप लिखेंगे, जो आप रजिस्टर करेंगे, उस पर एक लिंक जनरेट होगी ली चेस के द्वारा। तो ये आपके मेल में पहुंचेगी, और जहां मेल में से पहुंचने के बाद वहां से आपको कंफर्मेशन देना है, उस पर क्लिक करना है, जो लिंक दी गई है वहां पर क्लिक करोगे तो आपका आईडी और पासवर्ड जनरेट होते हुए सीधा आपका लॉगिन हो जाएगा। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर फिर आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है वो आईडी और पासवर्ड करके आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपके सामने एक स्क्रीन आ जाएगी, उस स्क्रीन में आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर, तो उस ऑप्शन में टूर्नामेंट लिखा है, तो उस टूर्नामेंट पर आपको क्लिक करना है। तो टूर्नामेंट में आपने क्लिक किया, उसके बाद आपके सामने ये वीडियो है बिल्कुल, कि ये आपने लॉगिन कर लिया। लॉगिन के बाद टूर्नामेंट पर जो 3 ऑप्शन थे उस पर जाएंगे, रजिस्ट्रेशन, हमारा यूजर आईडी और पासवर्ड हमने हमारा यहाँ लिखेंगे,
यहाँ पर पासवर्ड हमने जो सेट किया था वो पासवर्ड सेट कर देंगे और ये आ गए लॉगिन। यहाँ पर टूर्नामेंट का ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हुए यहाँ पर टूर्नामेंट का ऑप्शन आ गया। टूर्नामेंट पर क्लिक करते ही आपके सामने स्क्रीन आ गई जिसमें क्रिएट अ न्यू टूर्नामेंट लास्ट में नीचे है, यहाँ पर उसको हमने क्लिक कर लिया। उसके बाद स्क्रीन आ गई कि हम क्या नाम लिख सकते हैं टूर्नामेंट का जो हम क्रिएट कर रहे हैं। तो हम JNV क्लास, हम किसी भी क्लास का हम करवा रहे हैं JNV जो हम लिख सकते हैं, और क्लास 6 की करवाए तो 6, 7 की करवा सकते हैं तो 7 यहाँ लिखेंगे हम। उसके बाद जो ऑप्शन में आ जाएंगे टाइम वाले में, जो आपको टाइम दिख रहा है, तो हम कितने समय की मैच करवाना चाहते हैं, 2-2 मिनट की, 3-3 मिनट की, 5-5 मिनट की। तो हमने यहाँ 5 मिनट, जो हमारी मैच तो बहुत सारी, हमारी 9 से 10 मैच होगी, और कितने समय में ये मतलब मैच है जो टूर्नामेंट है वो पूरी हो जानी चाहिए। तो उसके लिए हमने क्लिक कर लिया। उसके बाद हम चाहते हैं कि कितना टाइम मिले बच्चों को, कि बच्चों को ज्वाइन होने में 10 मिनट मिले, 15 मिनट मिले, 20 मिनट मिले, तो उसका टाइम है, यहाँ पर हमने वो टाइम सेट कर दिया। उसके बाद हम चाहते हैं कि हम इन टूर्नामेंट का पासवर्ड भी रखें, तो हम पासवर्ड रख सकते हैं बिल्कुल। XYZ हमने कुछ भी यहाँ पर पासवर्ड टाइप कर दिया, ओके। तो ये पासवर्ड भी हम इसमें सेट करते रह सकते हैं ताकि किसी को भी लिंक पहुंची। सबसे लास्ट ऑप्शन क्रिएट टूर्नामेंट, क्रिएट करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, ये हो गया। अब नीचे वाले 4 ऑप्शन है, उसमें से सबसे लास्ट ट्रायंगल है, और उसके पहले शेयरिंग वाला था, तो शेयरिंग वाले पर शेयर करके हम शेयर कर सकते हैं, और ट्रायंगल पर क्लिक करते ही हम उसमें लॉगिन हो जाएंगे। बिना ट्रायंगल पर क्लिक किए बने हम उसमें टूर्नामेंट में एंट्री नहीं होगी हमारी। यहाँ पर सबसे जो लास्ट ऑप्शन था, यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो फ्लैग डिस्प्ले हो रहा है आपके सामने, वो फ्लैग की जगह ट्रायंगल था। ट्रायंगल पर क्लिक करने के बाद फ्लैग डिस्प्ले हो रहा है। तो ये हो गया हमारा टूर्नामेंट का पूरा, कि हम कैसे हम खेल सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। और लास्ट में जब आप ज्वाइन हो गए, तो ज्वाइन हो गए तो बहुत सारे प्लेयर इसमें ज्वाइन हो गए। इसमें नीचे 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, क्वेश्चन मार्क, फिर लिंक शेयरिंग वाला, चैटिंग कर सकते हैं, और ट्रायंगल। ट्रायंगल में जब क्लिक करते हैं तभी हमें उसमें हम टूर्नामेंट में एंट्री होती है। तो उसके बाद जैसे ही आपकी मैच आ जाएगी, तो आपको यहाँ 17 सेकंड दिख रहे हैं व्हाइट लाइन में, तो वो 17 सेकंड के अंदर अगर आप प्ले नहीं करते हो तो आप यहाँ मैच आप हार गए, तुरंत रिजल्ट आ जाएगा। तो जरूरी है कि हम स्क्रीन के सामने रहे, और जब भी हमारा टर्न आए तुरंत हमारा प्ले होना चाहिए। यहाँ दोनों का 5-5 मिनट का समय है, जिसका समय पहले खत्म हो जाएगा उनको लॉस हो जाएगा। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तब आपके सामने ऐसी स्क्रीन आ जाएगी, तो उसमें जितने भी ऑप्शन है, अभी 0-1 जो है रिजल्ट दिखा रहा है, उसके सबसे लास्ट में बैक टू टूर्नामेंट, बैक टू टूर्नामेंट ये ऑप्शन आपको दिख रहा है। वहां पर क्लिक करने के बाद ही आप दूसरे राउंड में जा सकते हैं। अगर आपकी मैच यहाँ खत्म हो गई, आप यहाँ रुकेंगे, तो दूसरी मैच आप नहीं खेल पाएंगे। और जब सब मैच, यहाँ पर देखिए मैच हो गई थी, तो मैच का रिजल्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 2 पॉइंट, जो फर्स्ट प्लेयर था उनको 2 पॉइंट हो गए, सेकंड प्लेयर को लॉस हो गया। जब टूर्नामेंट खत्म हो जाएगी तो आपके सामने ऐसा रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट को आप देख सकते हो कि किस प्रकार से रिजल्ट क्लास 7 का रिजल्ट है ये, और वो रिजल्ट में कौन से प्लेयर है फर्स्ट नंबर पर, कौन सेकंड पर है, कौन थर्ड पर है, वो हम घर बैठे बैठे भी इनको सीख सकते हैं। तो आज जो हमारा मेन था कि हम कैसे इनको खेले हमारे दोस्तों के साथ, कैसे हमारी मेंटल एबिलिटी का बहुत ज़्यादा उनको हम बढ़ा पाए। तो आप सभी से यही निवेदन है कि इनको आप सीखिए, और अच्छे से सीखिए, और आनंद लीजिए इस कोविड-19 में भी, कि कैसे हम अपने आप को शारीरिक रूप से तो फिट रख ही रहे हैं,
पर मानसिक रूप से कैसे फिट रखें। हाँ। हाँ बेटा, अब 2 मिनट, बस 2 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम। और बस अब वो समय आ गया है कि आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया है, सीख लिया है, तो क्यों ना हम सबके बीच में एक टूर्नामेंट जैसा हो जाए। तो इसके लिए जैसे ही आप में ऐप में लॉगिन हो जाएँगे, तो लॉगिन होने के बाद जो ये पेज आपको दिख रहा है, तो ये पेज में आपको बुलेट्स, बीट्स और रैपिड 3 अलग-अलग फॉर्मेट दिखाई दे रहे हैं। जैसे क्रिकेट में होता है 2020, टेस्ट, वनडे, तो वैसे इसमें तीनों में हम रैपिड में आप रैपिड टूर्नामेंट खेलेंगे। और रैपिड के बाद आपको कल शाम तक 5 बजे तक का समय दिया जाता है। आपका स्कोर, नीचे आपको मैं एक स्कोर दिखा रहा हूँ। ए स्कोर में दिख रहे हैं आप, बुलेट भी है, बीट्स भी है, रैपिड भी है और क्लासिकल भी है। तो आपको रैपिड में अपने मैक्सिमम गेम्स खेल के जो स्कोर है, उनको सबसे ज़्यादा स्कोर आपको बढ़ाना है। वो स्कोर आप अपने फिजिकल एजुकेशन टीचर है, उनके व्हाट्सएप पर पहुँचा दीजिए, वो हमारे तक पहुँच जाएगा। और इसका जो रिजल्ट है, वो आपको क्लोजिंग सेरेमनी के वक्त डिक्लेयर किया जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि हम सब ये टूर्नामेंट खेले और एक पॉइंट कैसे बढ़ाए, उसमें हम आगे बढ़े। बस यहाँ पर हम खत्म करते हुए, बस मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ साथ में हमारे इन्वेस्ट कमिश्नर, ऑनरेबल इन्वेस्ट कमिश्नर सर का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमें बहुत अच्छा सपोर्ट किया। उसके साथ साथ श्री मणिकुंतला सरकार मैडम है, जो कंसल्टेंट है, उसका बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ में एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि जब से मणिकुंतला सरकार मैडम हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में जुड़े हुए हैं, तब से जो हमारा SGFI का जो हमारा जो गोल्ड मेडल है, सिल्वर मेडल है, जो मेडल की संख्या है, उसमें काफ़ी मतलब हम आगे बढ़ पाए हैं। और पहले टूर्नामेंट नहीं होती थी, SGFI बहुत कम होती थी जो एनवीएस ऑर्गेनाइज करते थे, पर उन्होंने बहुत सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट करवाए। तो मैं उसके लिए बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैडम का। और साथ में हमारे पुणे रीजन के डिप्टी कमिश्नर श्री रवि कुमार सर का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा हम सबको मौका दिया और हम ये कर पाए। और अंत में मैं इस टीम से जुड़े हुए जो जानी सर का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जानी सर, खूब-खूब बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें सबको मौका दिया। और बच्चों, आपसे भी यही कहना चाहूँगा कि बाकी के दिनों में भी जो एक्टिविटी है, वो बहुत अच्छी एक्टिविटी है, उनका बिल्कुल लाभ लीजिए और उनको अच्छे से सीखिए। और ये मौका है, ये मौका आप बस मौका मिल जाए आपको बस। धन्यवाद।